Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are dealing with anything and everything which is required to get success in the construction. So, what is today's topics? आज का topics भी एक बहुत ही important topics है for the quality control. That is 5S technologies. But what is 5S systems and what is the history of 5S system and what is the benefit and how you can implement it in the construction. And today's video I will discuss each and everything about the 5S system in the construction. So stay tuned until then to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject, that is 5S system. Now पहला ये सवाल का आता है कि 5S है क्या, 5S चीज़ क्या है. Now 5S is the workplace organization system developed in Japan. So it's a workplace organization system. It focuses on the keeping clean, efficient and safe and standardized system. सो इसमें क्या होता है, क्लीन वर्क प्लेस, एफिशिएंट वर्क प्लेस, सेफ वर्क प्लेस एंड स्टैंडर्डाइज वर्क प्लेस, तो आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, वेस्टेज कम होता है. दैट इज़ वाई नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल कंपनीज अभी आप ये 5S सिस्टम को अडोप्ट कर रहे हैं. तो एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर आपको ये 5S सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है. सो इन शॉर्ट 5S is a organizational system developed in Japan to workplace clean, efficient, safe and standard. Now what is 5S? What standardized or stand for the 5S? That we need to know. So these 5S terms is developed in Japan. So it's in the Japan language. So I'm not from Japanese, so maybe the pronunciation is varied. But the 5S stand for Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Sitsuke. But what is this? Seiri is in English, it is short. Then Seiton is set in order. Seiso is shine. Then Seiketsu, that is standardized, and Sitsuke is the sustain. So short, set in order, shine, standardize and sustain. This is the 5S system. Now why this 5S system is important, or how we can standardize or we can implement into our construction. Now these 5 Cs bring discipline, clarity and operational excellence. And in construction where thousands of materials, tools and manpower comes together, 5S becomes the game changer. सी आप देखते हो ना, कंस्ट्रक्शन में कितना मटेरियल रहता है, स्टोर में कितना मटेरियल पड़ा रहता है, साइट में कितना मटेरियल पड़ा रहता है, कितना वर्कर आता है काम करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स का वर्क होता है. तो अगर आपका वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका वर्क प्लेस सेफ नहीं है, आपका वर्क प्लेस स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो आपका प्रोडक्टिविटी में असर आएगा. दैट इज़ वाई दिस 5S सिस्टम इज़ very much important. Now what is the history of 5S system? The 5S originated in Japan, primarily developed by Toyota, a part of their production system, that is called the Toyota Production System or the TPS. And the goal was simple: reduces waste, increase efficiency, create a culture of continuous improvement. Now वेस्ट reduce हो जाएगा, efficiency ज़्यादा हो जाएगा, तो और क्या चाहिए, आपका प्रोडक्ट जो है नॉन कन्फॉर्मिटी नहीं आएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा ही. सो क्रिएट अ कल्चर एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. सी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है कि हर पर आपको ऐसा कुछ नया सोचना है जो आपको इम्प्रूवमेंट आता है. हम लोग अपना पर्सनल लाइफ में भी करते हैं ना. अच्छा ये नहीं हुआ, जैसे हम लोग बचपन में मैच खेलते हैं, फुटबॉल मैच, तो कोई मैच में हम हार गया, क्यों हार गया, हम उसको एक रूट कॉज करते थे ना, जब क्यों हार गया, उसने गोल नहीं कर पाया, उसने डिफेंस नहीं कर पाया. तो नेक्स्ट मैच में हम लोग क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो क्या होता है ना, हमारा स्ट्रैटेजी एनहांस होता है. तो इसको बोलता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. तो ये 5S जो सिस्टम है आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सिस्टम को भी एनहांस करता है. तो जाके हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, रेड्यूस वेस्ट होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. ओवर टाइम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज in worldwide accepted or adopted 5S. Later construction companies realized that the same principle dramatically improves site productivity and the safety. Today
5 is a global practice and used in construction, hospital, airports, logistics, and almost every organized industry. So it is not that only the production areas, it is can be utilized in the our construction products also. Now, why the 5 is important in construction? In construction, delays and safety issues can cost a huge amount of money. Also, the cost of poor quality. Let me give you the common example. Worker wasting 20 minutes searching for a vibrator. ये होता है ना, वाइब्रेटर किधर है, स्टोर में बोला, स्टोर बोला, उधर चला गया, स्टोर में ने बोला नहीं, कम काल तो हमने उसको दे दिया था, फिर जाके कहा मेरा स्टोर के बाहर पड़ा है या साइड में किधर में भी पड़ा हुआ है। तो एक वाइब्रेटर ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट होता है। मटेरियल्स डम्प्ड एवरीवेयर कॉजिंग कंजेशन। अगर मटेरियल को डम्प हर जगह करके रखेंगे तो आपका वर्क प्लेस तो सेफ नहीं है, आपका जो वॉकवे है वो भी बंद हो जाएगा। तो वॉकवे बंद हो जाएगा तो क्या, मटेरियल एंड मैन पावर आपका साइट में आने में लेट हो जाएगा, और अगर लेट हो जाएगा दैट्स डिले एंड प्रोडक्शन विल बी द लेस। देन टूल्स डैमेज ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। अगर स्टोरेज आपका सही नहीं है, आपको मान लो कि शटरिंग प्लेट है, आपने एक के ऊपर एक फेंक दिया, कोई प्रॉपर स्टोरेज उसको नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, आपका जाके शटरिंग प्लेट डैमेज हो जाएगा। देन एक्सीडेंट हैपनिंग ड्यू टू क्लटर्ड पाथवेज। ना पाथवेज अगर ऐसे बात किया ना, पाथवेज अगर आपको क्लटर्ड है, पाथवेज आपको डिस्ट्रैक्ट है, आपको बंद है, तो क्या होना, जंप करके जाना पड़ेगा, और अगर जंप करने जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर एक एक्सीडेंट हो गया तो आपका प्रोजेक्ट में डिले आएगा, क्योंकि द अथॉरिटी विल कम एंड अथॉरिटी विल इंस्पेक्ट क्यों क्यों ऐसा हुआ। सो hefty फाइन विल कम, प्रोजेक्ट में गेट डिलेड। सो दिस आर ऑल इन्वॉल्व इन द वर्क प्लेस। रीवर्क बिकॉज ऑफ मिक्स अप्स एंड पोअर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास सीमेंट को डाउन सही ढंग से नहीं है तो क्या होगा ना, अब ऐसा कुछ सीमेंट आपको दे देंगे जिसका एक्सपायरी डेट हो गया या लम्स क्रिएट हो गया, तो वो यूज़ करना चालू कर देंगे, तो इट विल बी द पुअर क्वालिटी। तो सीमेंट कोडाउन को भी आपको प्रॉपर दिस 5S टेक्नोलॉजी के हिसाब से, 5S सिस्टम के हिसाब से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S? द फास्टर वर्क ड्यू टू ऑर्गेनाइज टूल्स। अगर मान लो कि आपका स्टोर एकदम बराबर है, कैसे है जी, हर टू एवरी टूल इन सेपरेट एरिया and in the designated area, and in the store it is given the marks that this tool is there। and if मान लो कि वाइब्रेटर है 20-25 mm का, 40 का, 60 का, 90 का, वो भी आपने स्टैंडर्ड से 25 पहले, 45 पहले, उसके बाद 60, उसके बाद 90। तो आप इसने इसको शॉर्ट करके रखा है और आप उन्हें एकदम बराबर प्रॉपर जगह पे रखा है, तो आपको इमीडिएट टूल्स मिल जाएगा, तो आपको फास्टर वर्क होगा। देन ज़ीरो टाइम वेस्ट फॉर सर्चिंग। अगर ये नहीं हुआ कि आपको साथ ढूंढना पड़ेगा, इधर देख उधर देख, इसका नीचे देख उसको ऊपर देख, ऐसे करना पड़ेगा, तो आपका टाइम जाएगा। सेफ वर्कवेज फॉर वर्कर्स। तो वर्कर्स को डैमेज नहीं होगा, वर्कर्स को आपका कोई इंसिडेंट नहीं होगा। प्रोफेशनल एंड क्लीन साइट अपीयरेंस, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एंड क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका बराबर आपको टूल्स एंड मिल जा रहा है, आपको जो चाहिए काम करने के लिए आपको इमीडिएटली मिल रहा है, तो जीरो वेस्टेज हो जाएगा। मोटिवेट वर्कफोर्स। अगर आपको कोई एक जगह में गया घूमने के लिए, होता है ना ऐसा, अब जाए गया देखा कि अपना जो होटल है अनटाइडी होटल है, आपका इधर उधर डार्ट पड़ा हुआ, आपको कैसे लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, बोले कि इधर हमको लेने का लायक नहीं है, आपका जो ट्रैवल प्लान एकदम स्पॉइल्ड हो जाएगा। पर अभी आप वही सोचिए कि आप जिधर गया एकदम टाइडी है, क्लीन नीट, सब एकदम बराबर है, तो आपको क्या होगा, आप हैप्पी हो जाओगे, तो आपका जो ट्रैवल प्लान आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड इम्प्रूव्स क्लाइंट कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग विजिट और द प्रोडक्ट। सो ये है आपका बेनिफिट्स ऑफ 5S। नाउ what is the short, but the 5 terms we have already discussed. Now I will break it down short. That's in at any site unnecessary material creates chaos। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट करना पड़ेगा मटेरियल। ऐसे होता है ना, हम लोग तो घर में भी जो अभी तो जो वेस्ट है, मान लो कि रिसाइकलेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, हम लोग साइड में करते हैं कि डिफरेंट वेस्ट बिन। अगर नहीं है तो कि जितना भी वेस्ट है सब एक जगह में डंप करेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका इस डिले हो जाएगा, एक ही साथ में 100 वेस्ट हो जाएगा। तो हमने कंक्रीट वेस्ट, ग्लास वेस्ट, वुड वेस्ट, फूड वेस्ट,
ऐसे हम लोग पहले शॉर्ट कर देते हैं कि जगह अलग अलग कर देते हैं, तो उसमें जाके डालते हैं हमारा वर्कर। तो फर्स्ट दिस इज़ द शॉर्ट। ऐसे टूल्स में भी जैसे हम एग्जांपल दिया वाइब्रेटर का, 25 का अलग जगह, 40 का अलग जगह, 60 का, 90 का। तो ऐसे हिसाब से जो भी आपका मटेरियल है फर्स्ट आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो और जो मटेरियल आपको नहीं चाहिए उसको आप साइड से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। जो शटरिंग प्लेट डैमेज हो गया, जो उस काम का नहीं, तो इमीडिएटली उसको साइड से रिमूव कीजिए, नहीं तो वो अननेसरी स्पेस आपको क्रिएट कर कंज्यूम करेगा और आपको हिंड्रेंस आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ शॉर्ट। सो जो मटेरियल चाहिए वो रखिए, जो मटेरियल नहीं चाहिए उसको साइड से निकाल दीजिए। देन सेट इन ऑर्डर। सो आपको अभी करना है, मटेरियल तो आपने ले लिया, जो ये मटेरियल हमको साइड में चाहिए तो उसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको सीमेंट एक जगह, स्टील यार्ड एक जगह, आपका वेस्ट एक बिन एक जगह, आपका टूल्स एक जगह, आपका शटरिंग बाइंडिंग वेयर एक जगह, आपका प्लम्बिंग मटेरियल एल्बो एक जगह, सॉकेट एक जगह, हाफ इंच का पाइप एक जगह, 2 इंच पाइप का एक जगह। तो ऐसे 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 आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द सेट इन ऑर्डर। अगर हो गया, पहले हो गया शॉर्ट करके हमने जो निकाल दिया, अभी हमने सेट इन कर दिया। नाउ शाइन। शाइन मीन्स यू नीड टू क्लीन एरिया। क्लीन साइट इज अ सेफ साइट। ए इज द फर्स्ट मंत्रा। तो इफ द साइट इज क्लीन, साइट इज सेफ। तो आपको क्या करने का, आपको जो साइट है बराबर एकदम क्लीन रखना पड़ेगा। समटाइम हम लोग की हाउस कीपिंग को इग्नोर करते हैं। तो हमने जो शॉर्ट किया, जो सेट इन ऑर्डर किया, बराबर क्लीन में रखने का। और जब भी आपको मालूम पड़ेगा, और उसको क्या है ना, आपको कहाँ रखा है उसको रजिस्टर भी बनना पड़ेगा, कौन सा डेस्क में या कौन सा ताक में है, तो आप कौन सा शेल्फ में जाके आप क्या मटेरियल रखा, तो वो आपको रजिस्टर में, तो रजिस्टर देख के भी बता सकता है कि उस शेल्फ में ये मटेरियल है। तो आपको शाइन करना पड़ेगा, दैट इज़ क्लीन रखना पड़ेगा। देन द फोर्थ पार्ट इज स्टैंडर्डाइज। नाउ जो आपने सिस्टम अभी डेवलप किया, दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज। दैट मीन स्टैंडर्ड पीपी जोन, डेली हाउस कीपिंग एंड चेकलिस्ट, मटेरियल स्टोरेज लेआउट ड्राइंग्स। जैसे आपने हमको भी बोला ये कि कौन सा शेल्फ में क्या मटेरियल है, तो मटेरियल साइड स्टोरेज लेआउट ड्राइंग आपको चाहिए। साइन बोर्ड फॉर ऑल एरियाज, स्टैंडर्ड ड्यूरिंग स्केड्यूल, स्टैंडर्ड बीओक्यू फॉर टूल्स एंड टैकल्स फॉर पार्ट टीम। तो आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा आपको मटेरियल को, आपका वर्क प्लेस को। सो शॉर्ट किया, सेट इन ऑर्डर किया, साइन किया, एंड नाउ स्टैंडर्डाइज भी कर दिया कि मेरे को साइट में ये प्रोसीजर हैज़ टू फॉलो फॉर द 5 years। एंड द लास्ट इज द सस्टेन। तो मेंटेन डिसिप्लिन। आपने तो इतना सारा कर दिया, सेट किया, सेट इन ऑर्डर किया, उसके बाद शॉर्ट किया, सेट इन ऑर्डर किया, सस्टेन किया, क्लीन किया, बट अभी वो अगर फॉलो नहीं हुआ, स्टैंडर्डाइज भी कर दिया प्रोसेस, अभी ये प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अगर फॉलो नहीं किया, फिर 1 महीने के बाद फिर आपका सब अनवांटेड मटेरियल डंप हो जाएगा। जो ऑर्डर ने अपनी प्लेस किया था वो ऑर्डर सही जगह पे नहीं रहेगा, तो अगेन इट विल बी एन अनटाइडी सिचुएशन। तो अगेन आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो रेड्यूसेस हो जाएगा। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ेगा। दैट मीन्स सस्टेन। So this is the most difficult step. Sustaining fires requires training, monitoring and leadership. Daily क्या करना पड़ेगा, डेली 5 years audit, weekly toolbox talk on 5 years, reward system based 5 years team of the month, poster and banner on site, supervisor responsibility of mapping. So आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी पहले का जो 4 चीज़ है वो आपको सिस्टम में नहीं आएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आप कभी शॉपिंग मॉल में जाओगे ना, तो आप शॉपिंग मॉल में जाके देखोगे कि कितना अच्छा वो लोग सजा के रखा है। क्यों? दे आर यूटिलाइजिंग द 5 A's सिस्टम। अगर सेम शॉपिंग मॉल में आपको सेम जगह पे सब कुछ डंप करके रखते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप में होता है ना, तो एक जगह में सब गए हैं, उनको ढूंढना पड़ता है कहाँ है, पर इन शॉपिंग मॉल सब कुछ सजा के रखा है आपके सामने, तो आपको इजी हो जाता है पिकअप करने के लिए कि कहाँ कौन सा मटेरियल, कौन सा सामान पड़ा हुआ है। तो कभी भी आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। और ये भी छोड़ दीजिए, आप अपना घर में देखिए, जो किचन है आपका मम्मी या आपका वाइफ जो है कितना अच्छा सजा के रखता है, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ कौन चीज़ मालूम है, और इजीली आपको जाके मालूम पड़ जाएगा। हाँ, इधर ये नमक है, इधर हल्दी है, इधर मिर्ची है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए 5 A's सिस्टम। आप जानते हुए भी ना जानते हुए भी हम लोग 5 A's सिस्टम को एडप्ट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में भी क्या है ना, आपको ये
5S सिस्टम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्शन डिले हो जाएगा, रीवर्क कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा. सो these are all about the 5S system and how you can implement into your products, and I hope you find it useful. And if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. And without wasting time, I'm waiting for your feedback. From your feedback, everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I'll come with more content like this. And thank you once again for watching me.